morning, good students. This is Anupama Labhe and I am here for your subject Business Law. And today's topic of our discussion is rights of unpaid seller. We have already discussed the introduction to sale of goods, and we have studied in that the kinds of goods and the essentials of valid sale of goods. So today we are going to start with our new chapter which relates to unpaid seller. First, you must know the meaning of what is unpaid seller, or whom you may call as an unpaid seller. Unpaid seller is a person who does not receive whole of the price is known as an unpaid seller. That means a person whole of the price is unpaid or untendered. Then the second one is when the bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled by reason of dishonor or otherwise. And the third one is when even part of the price has not been paid. Let us discuss these points once again. Who is unpaid seller? Who has not received whole of the price for his goods. He may be called as an unpaid seller, or where instead of receiving the cash, he has given the negotiable instrument, for example a check, and he has given the conditional check. That means you must submit this check after this due date, okay? After this date. For example, the check, you sold the goods on date 26th November, and on that check you have mentioned the date 30th November, okay? 30th November 2020. That means this is a conditional check. Before 30th November you cannot submit it in your, or you cannot deposit it in your account. But when you deposit this on 30th November 2020, your check get dishonored because non-availability of balance. In such case, that means the seller is treated as unpaid seller. See again, when the bill of exchange or other negotiable instrument has been received, that means the seller is getting, instead of cash, what he is getting? Any type of negotiable instrument has been received as conditional payment, and the condition on which it was received has not been fulfilled by reason of dishonor or otherwise. In such circumstances also the seller is known as unpaid seller. And the third one is when even part of the price has not been paid. If the buyer fails to pay the whole of the price or part of the price, then also the seller is known as unpaid seller. Is it clear to you who is unpaid seller? Now we will discuss what are his rights. What are the rights of unpaid seller? We can bifurcate his rights into rights against the goods and rights against the buyer. He has two rights, that means against the goods and against the buyer. Let us discuss his rights against the goods. First right is right of lien. What do you mean by lien? Lien means retaining the possession of goods until he gets his amount. Okay? जब तक के उसे उसके पैसे नहीं मिल जाते हैं, गुड्स के पैसे उसे नहीं मिल जाते हैं, तब तक के he has a right to retain the goods in his possession. ठीक है? तो right of lien लेने के लिए what is important, what is necessary? If he want to exercise his right of lien, then when the goods have been sold without any stipulation as credit, यानी उसने क्या किया है? Without stipulating the credit, he has sold the goods where the goods have been sold on credit but the term of credit has been expired. यानी उसने goods पहले केस में क्या है? कुछ भी बताया नहीं है और क्रेडिट का कोई उनके इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और फिर भी उसने पैसे दिए नहीं है. किसने पैसे नहीं दिए हैं? बायर ने सेलर को पैसे नहीं दिए हैं, and the seller is in possession of goods, then he can exercise his right of lien. And the second one is where the goods have been sold on credit but the term of credit has been expired.
क्या देख रहे हैं हम लोग सेकंड कंडीशन में, ही सोल्ड द गुड्स ऑन बेसिस ऑफ क्रेडिट बट द टर्म, यानी उसने जितना टाइम दिया हुआ था वो क्या हुआ है, दैट हैज बीन एक्सपायर्ड। इसलिए वो कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसका राइट ऑफ लीन ही कैन एक्सरसाइज। एंड द थर्ड वन इज वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। When any person becomes insolvent, how he can pay the amount? अभी आपको मालूम ही है ये कि जो बायर है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है। He will not be in any way is in a position to pay him for his goods, so he can have a right against the good of lien. Okay, is it clear? Right of lien means retaining the possession of goods with the seller himself till the buyer pays his amount. इसलिए हमने तीन कौन से देखे, पहला ये कि क्रेडिट के लिए कोई स्टिपुलेशन नहीं है और फिर भी उसने पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो ऐसे केस में जो सेलर है वो गुड्स को अपने पोजीशन में ही रिटेन करेगा जब तक के बायर उसकी अमाउंट फुल्ली पे नहीं करता है। सेकंड क्या देखा है कि गुड्स आपने कैसे सोल्ड किए, क्रेडिट बेसिस पे, लेकिन क्रेडिट बेसिस की जो टर्म्स है, जो टाइम है वो क्या हो गया, एक्सपायर्ड हो गया है। जब एक्सपायर्ड हो गया है तो ये फिर भी अपने पास क्या रखने वाला है, उस गुड्स का पोजीशन बायर सेलर जो है वो अपने पास ही रखने वाला है। एंड द लास्ट वन इज वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। क्यों, व्हाई ही इज रिटेनिंग द पोजीशन ऑफ गुड्स, बिकॉज ही हैज नॉट गेट द पेमेंट फॉर हिज गुड्स। व्हेन द पर्सन बिकम्स इंसॉल्वेंट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेलर टू गेट द पेमेंट फॉर हिज गुड्स। तो ये तीन कंडीशन में क्या होगा, he will get the right of lien. Now the next one, right of stoppage in transit. क्या कर रहा है, फर्स्ट केस में क्या देखा हमने कि उसने गुड्स को ही he has not parted with the goods, and in second case what is happening, he has parted with the goods but goods are still in transit and that's why he has a right to stoppage in transit. समझ में आ गया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट यानी क्या है, गुड्स को उसने तो दे दिया है, यानी उसके गोडाउन से या उसके शॉप से क्या हुए, गुड्स निकल चुके हैं, बराबर है। लीन में क्या है, गुड्स अभी भी उसके हाथ में है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, गुड्स उसके हाथ से निकल गए हैं लेकिन अभी तक के बायर के हाथ में पहुंचे हुए नहीं है। तो ऐसे इसमें व्हाट आर द राइट्स ऑफ बायर, अब कंडीशन भी होनी चाहिए। If he want to stop the goods in transit, then certain conditions must be fulfilled. What are those conditions? देखिए पहले क्या है, the seller must be unpaid. अगर seller under what circumstances he can stop the goods, if he is a unpaid seller, if he had received full price for his goods, he cannot have a right to stop the goods in transit. So the first condition is he must be a unpaid seller. Second one is the buyer must be insolvent. Again, क्यों buyer insolvent हो गया है ने? In any case he will not pay his amount. इसलिए second condition to stop the goods in transit is the buyer becomes insolvent. That means buyer must be insolvent. वो insolvent है ही, इसलिए वो goods को क्या कर रहा है, stop कर रहा है। And the second one is the seller must have parted with goods. पहले मैंने कहा if you want to stop the goods when they are in transit, that means the seller has parted with the goods. So the third condition is the seller must have parted with the goods. And the next one is the buyer must not have acquired the possession of goods. Acquired the possession of goods का मतलब ये होता है कि इसके हाथ से गुड्स चले गए हैं, that means the seller has parted with the goods but the buyer still had not possessed the goods, यानी कि उसके हाथ में अभी वो गुड्स आए नहीं है। बायर के हाथ में गुड्स आए नहीं है यानी क्या होता है कि on behalf of buyer any person can take the delivery of goods. If that person has taken the delivery of goods, then it is considered that the buyer is in possession of goods. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसके बिहाफ में उसके किसी एजेंट ने या किसी और ने गुड्स को पजेस किया है, then the seller loses the right of stoppage of goods in transit. Is it clear? Recapitulate the points. क्या क्या बताया मैंने आपको, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन्स क्या है, आपको गुड्स को
ट्रांजिट में, यानी जब वो आपके इससे पार्टेड हो गए हैं, आप उसे क्या करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं। स्टॉप क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर अनपेड सेलर। यू आर अनपेड सेलर मीन्स क्या है, आपको आपके गुड्स के लिए जो प्राइस है वो पूरी तरह से या बिल्कुल भी मिली हुई नहीं है। तो क्या है, द सेलर मस्ट बी अनपेड सेलर। सेकेंड वन, द बायर मस्ट बी इंसॉल्वेंट। द थर्ड वन, द सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद द गुड्स। अगर पार्टेड विद द गुड्स नहीं होता तो उससे कौन सा राइट बनता, राइट ऑफ लीन। ओके, एंड द बायर मस्ट नॉट हैव एक्वायर्ड पोजेशन ऑफ गुड्स। अगर उसके हाथ में पोजेशन आ गया है, समझिए आपने मुझे कुछ सेल किया हुआ है, ठीक है, और वो मेरे हाथ में आ गया है, क्या अभी आप उसे ट्रांजिट में यानी चलते हुए उसे स्टॉप कर सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बार मेरे हाथ में आ गया है, तो आप उसे स्टॉप कैसे करोगे। आप मुझे बोलोगे कि आपके हाथ में जो आए हुए गुड्स है अभी उसको आप यूज मत करो, मैं तो बायर हूँ, जैसे मेरे हाथ में गुड्स आ गया मैं उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन कर सकती हूँ। इसलिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द बायर मस्ट नॉट हैव एक्वायर्ड द पोजेशन ऑफ गुड्स। एंड द थर्ड वन, the right which the seller has against the goods is right of resale. What do you mean by right of resale? Resale यानी क्या होता है, पहली बार आपने सेल कर चुके हो और फिर आप क्या कर रहे हो, फिर से उसी गुड्स को किसी और को सेल करना चाहते हो, दैट इज नोन एज रिसेल ऑफ गुड्स। कैसे हो सकता है रिसेल ऑफ गुड्स, क्यों आप रिसेल कर रहे हो, पहले ही हमने क्या नाम दिया है, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर ओनली हैज अ राइट टू रिसेल द गुड्स। समझ में आया क्या है, सेलर को फिर से रिसेल करने का राइट नहीं है। मैंने आपको सेल क्या होता है तभी बताया है, सेल क्या कैसे होता है, व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू अदर पर्सन। प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी ही क्या है, ओनरशिप हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बराबर है। जैसे वो हो जाता है तो वो जो सेलर है उसका ओनरशिप से राइट चला निकल जाता है, बराबर है। इवन दो द सेलर इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, द रिस्क लाइज विद द ओनर। रिस्क लाइज विद द ओनर यानी ओनर कौन हो गया यहाँ पे, जब सेल हो गया तो बायर इज ओनर। तो अगर कोई डैमेजेस भी पहुंचते हैं गुड्स को तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होने वाली है, बायर की होने वाली है, सेलर की नहीं। बट दैट इज इन नॉर्मल केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, बट हियर वी आर टॉकिंग ऑफ राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, बराबर है। इसलिए राइट ऑफ रिसेल ऑफ गुड्स ये किसके लिए होता है, ये अनपेड सेलर है, लेकिन कौन से गुड्स के लिए उन्होंने बताया है, एक पेरिशेबल गुड्स होते हैं और एक नॉन पेरिशेबल गुड्स होते हैं। जब पेरिशेबल गुड्स है और अगर बायर उसके अगेंस्ट पे आपको अमाउंट पे नहीं कर रहा है एंड यू नो दैट इफ द डिलीवरी इज नॉट टेकन इमीडिएटली द गुड्स विल बी इन अ पोजीशन टू नॉट टू यूज इट, बराबर है। ट्रेडेबल जो वैल्यू होती है उसकी, मार्केटाइबल वैल्यू जो होती है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ऐसे केस में ना तो बायर को कोई फायदा होने वाला है ना तो कोई सेलर को, बराबर है। उसके मार्केटेबल वैल्यू नील होने की वजह से इन दिस केस इफ द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर द सेलर कैन रिसेल इट, बराबर है, विदाउट गिविंग नोटिस टू द बायर। बायर को इस केस में कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ यू गिव द नोटिस टू द बायर देन द बायर विल रिस्पॉन्ड टू यू, that means respond to your notice and this will take some time and during that time your goods get perished, बराबर है, तो of no value। इसलिए in such cases that means such a type of goods there is no need to give notice to the buyer, the seller can sell the goods immediately। Okay, in second case where the goods are of non perishable nature यानी वो perish नहीं होने वाले, खराब नहीं होने वाले, ऐसे इसमें क्या है, the buyer does not pay price। कब सेल कर सकता है, विद इन अ रीजनेबल टाइम। इफ द बायर फेल्स टू पे द प्राइस देन द सेलर हैज अ राइट टू रीसेल द गुड्स एंड रिकवर हिज अमाउंट। दीज आर द राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। नाउ वी विल डिस्कस द राइट्स अगेंस्ट द बायर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। सो फॉर प्राइस, ठीक है, गुड्स के लिए हमने ये देखे हैं। अब बायर के अगेंस्ट में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे गुड्स क्या है, पर्सन है क्या, नेचुरल पर्सन है क्या, नहीं है। तो जो नेचुरल पर्सन नहीं है उसके अगेंस्ट में आप कोई केस फाइल कर सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं।
तो whom you can with against whom you can file the case? Against the buyer, that means a person. So the first right which the unpaid seller has against the buyer is suit for a price. If he has not received full amount for his goods, the seller has a right to file a suit against the buyer for the price, that means the amount which is yet to be paid by the buyer, yet to be paid by the buyer. Then the second one is damages for non-acceptance. In certain cases it is found that क्या हुआ है कि accept ही नहीं किए goods buyer ने. अब buyer does not accept the goods, then ultimately what will be the consequences? That means the seller will have to suffer the losses. कैसे सफर करेगा लॉसेस? देखिए, जैसे कि मैंने कहा है कि मुझे आपसे ये चीज चाहिए, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि इतने गुड्स है वो मैं आपसे लेकर जाने वाली हूँ, और मैंने आपसे वो लेने के लिए डिनाई कर दिया. अब मैं लेने वाली हूँ इसलिए आपने किसी और को सेल नहीं किए हैं. आपने सेल नहीं किए तब मार्केट में रेट अच्छा चल रहा था और तब मैंने आपसे वो एक्सेप्ट किए थे, और अब मार्केट में उसके रेट डाउन हो गए हैं. क्या होगा? और मैंने भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए डिनाई किया. नाउ यू हैव टू बेयर दैट लॉस. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे गुड्स, जब हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो 1000 रुपीज वो गुड्स की प्राइस थी, ठीक है, और मैंने क्या किया है, एक्सेप्ट नहीं किया. मैंने कहा कि मुझे अभी गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन आपने ये 1000 के गुड्स, दैट द रेट दैट वाज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, आपने वो किसी और को भी सेल नहीं किए. इवन दो द गुड्स वेयर इन डिमांड, आपके गुड्स जो थे उसके लिए हेवी डिमांड थी, इवन दो यू हैड नॉट सोल्ड दैट गुड्स. अब उसकी प्राइस हो गई है समझो 800 रुपीज, ठीक है, तो ये कितने का लॉस हो गया? मैंने तो लिए ही नहीं है. आप अभी क्या कर रहे हो, ये 800, यू आर फोर्स्ड टू सेल दिस गुड्स एट ₹800, बराबर है. दैट मीन्स you incurred a loss of ₹200. These loss you have a right, this loss is treated as damages. This damages you have a right to recover from the buyer. Is it clear? So damages for non-acceptance. Then damages for repudiation. What do you mean by repudiation? Again, repudiation क्या होता है? Cancellation of contract. बराबर है. What you are doing? You are cancelling the repudiation means cancelling the contract. अब ये कैंसिल कर रहे हो तो सेलर हैज टू ऑप्शंस. क्या ऑप्शन रहते हैं? एक तो टू ट्रीट इट एज दैट मीन्स नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है, or you may say the breach of contract. क्योंकि आप नॉन एक्सेप्टेंस कर रहे हो, that means you are breaching the contract, isn't it so? Or you can wait till the date of delivery. ठीक है, देखो फिर से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. Damages for repudiation. Damages for repudiation means that when the buyer before the date of delivery of goods cancel or repudiate the sale, then the seller has two options. क्या है? एक तो immediately, जैसे buyer ने आपको inform किया है कि I am repudiating the contract, तो आप immediately उसे क्या treat कर सकते हो? Breach of contract, and you have a right to file a suit against the buyer. या सेकेंड ऑप्शन इज, क्या कर सकते हो? यू कैन वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी, यानी आपने जो डेट फिक्स की हुई थी, जिस डेट पे आप उसे डिलीवर करने वाले थे गुड्स, उस वक्त तक क्या आप वेट कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू कैन recover the amount. That means you can file a suit against the buyer and recover your price. This is known as, this is the remedies for damage, that means recovering the damages for repudiation. And the last one is suit for interest and special damages.
क्या होता है कई बार इंटरेस्ट के लिए भी, जैसे यहाँ पे हमने इंटरेस्ट कहीं पे भी नहीं देखा है। डैमेज दैट मीन्स राइट अगेंस्ट गुड्स के अगेंस्ट में हमने इंटरेस्ट या स्पेशल डैमेजेस कहीं पे भी नहीं देखे, लेकिन द सेलर हैज अ राइट टू रिकवर द इंटरेस्ट। देखिए जैसे आपको एक क्रेडिट लिमिट दी थी, वो विद इन दैट स्टिपुलेटेड पीरियड यू हैव नॉट पेड द प्राइस एंड यू रिक्वेस्टेड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एंड द सेलर हैज ग्रांटेड यू दैट एक्सटेंडेड पीरियड। तो ये जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसके ऊपर इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट कॉन्ट्रैक्ट, he has a right to charge the interest, बराबर है, and you have to pay that interest to the seller. स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं? आपके वजह से जो डैमेजेस, जो उसे एडिशनल डैमेजेस जो उसको इनकर करने पड़े हैं, वो आपसे रिकवर कर सकता है। and these are the rights which are given to the unpaid seller against the buyer. Is it okay? ठीक है, थैंक यू।